तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां जीएसटी पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संबित पात्रा इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। बोल रहे थे, हम तो कर रहे थे। आप अगर देख लीजिए, आर्टिकल 370 आ जाए, पूरा भारत खुश रहेगा। कांग्रेस मातम मना रही होगी कि हम तो बोल रहे थे कर दो, हम तो ऐसा कर रहे थे, हम तो वैसा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हो जाए तो इनको मुश्किल है, पार्लियामेंट में इनको डिबेट करना है, वहां पर भी मुंह की पटखनी खानी पड़ती है इनको। एयर स्ट्राइक हो जाए तो इनको मुश्किल हो जाती है, और जीएसटी आती है तो मुश्किल होती है, जीएसटी रिफॉर्म होता है तो मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है जो मुश्किल में है, जिसको पीड़ा है उसको पीड़ा ही रहेगी, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो सकती है। और जो अच्छे करने वाले हैं वो अच्छा ही करते रहेंगे। जिसका जैसा स्वभाव, वो स्वभाव बदल नहीं सकता है। Do you want this in English as well? The GST reforms that have come today is one of the historical reforms of this country's taxation system. And not only the taxation system, these reforms have brought about a great deal of ease in common man's life. A common man in India is extremely happy today. There is a sense of euphoria in the country because everyone is touched by this reform, be it a small kid, be it a family as a unit, be it the entrepreneur, be it women, men, be it Annadata, that is Kisan. Everyone is touched by these reforms, so there is a sense of happiness in the country. But there are certain powers in the country, and especially the Congress party, which has criticized everything good that has happened to this country time and again. Congress party number one saying that we had dreamt of the GST in 2005, and it is the Bharatiya Janata Party which brings the GST today and is celebrating its outcome, should be reminded of the fact that for 75 years, you were given the opportunity to reform the taxation of this country. You did nothing except discuss, debate, discuss, discuss, discuss. They never decided, they only discussed. Here is the government of Mr. Modi, which discussed, debate, and decided on time for the country to move towards reform. Who had stopped Rahul Gandhi and party to bring about GST prior to 2014? If they had thought about GST in 2005, who had stopped them? Were they not efficient enough to negotiate with the states? Were they not efficient enough to bring or roll out the GST? It shows their own inefficiency. Number two, when Rahul Gandhi says that it was upon my advice that these things have happened, this is staying in a la-la land. This is staying in a dream's land. I congratulate Rahul Gandhi and I propose him that he should stay in his la-la land. That is not going to bring any dividends to the Congress party. Rather, if he stays silent, some 0.01 percentage basic point improvement in the GDP of Congress may be seen. But with him speaking, there is going to be only drop in the GDP of Congress party. Nothing changes for the Congress otherwise. देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सकारात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी आज जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए वाकई क्या किसानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या फैमिलीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या मार्केट में रेट सस्ते हुए या नहीं हुए। और बाय द वे, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वोट चोरी इत्यादि इत्यादि संस्थाओं को गाली देना, बिना किसी आधार पर गाली देना, और अगर तथ्य हैं तो उस तथ्यों को लेकर कोर्ट में नहीं जाना, तथ्यों को लेकर कंसर्न्ड विभाग के पास नहीं जाना, केवल टीवी के पास आके वहां पर बोलना,
तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी आम आदमी पार्टी जैसी ही हालत होती जा रही है, मोर ऑन द टेलीविजन एंड लेस ऑन द ग्राउंड। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से, खैर आजकल दोनों लड़ ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से केवल टीवी पर आके हल्ला मचाती थी कि हमारे पास इस जेब में ये कागज है, इस जेब में ये कागज है, इस अटैची में ये एविडेंस है, उस सूटकेस में वो एविडेंस है, और होता कुछ नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ऑल्सो हैज टर्न्ड इनटू एन आम आदमी पार्टी नाउ। संबित जी, जीएसटी काउंसिल ने फैसला कर लिया लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया, लेकिन जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल फैसला कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंस करते हैं, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कोई इम्पैक्ट है, कोई मीटिंग की वैल्यू है जब पहले ही अनाउंस कर दिया गया? I think Mr. Jairam Ramesh should know the difference between the vision and how to work out the vision. देश का एक विजन होता है, एक लक्ष्य होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से अनाउंस किया वो देश का विजन है, वो देश का लक्ष्य था कि देश में रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हर सेक्टर में रिफॉर्म होना चाहिए, मेडिकल रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, जीएसटी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री हैं देश के। जयराम रमेश जी को यह डिफरेंस पता इसलिए नहीं है क्योंकि जो एनएसी निर्णय लेती थी वो माननीय मनमोहन सिंह जी को पता नहीं होता था। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी उस समय, आप याद करिए, और जो निजी सचिव होते थे प्रधानमंत्री के,